Hello everyone, good morning. How are you all? This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 7, Subject Social Science, Chapter 5, Location and Time, Part 2. So in last video I was told you about latitudes. We discuss about latitudes and we find the definition of latitudes and longitude and how many latitudes are there and how to find out the latitude of your region that we talked. For that we used that protector method. We made the device to find the latitude for our place. I hope that you all applied and made your latitudinal device by your own self. With that, I was told you about GPS also. You all know about GPS very well. Whenever you are travel to somewhere, you can find the way by using GPS. So in this video we are going to study about longitude and local time and standard time. So in last video we I given you the ideas of about longitude also. Once again we talk about that here, and we talk about the important longitude, which are the important longitude and how does this longitudes help. Like latitudes are important to find out the place, while the longitudes are help to measure the time. So the vertical imaginary lines drawn on a globe that run in the north-south direction are known as longitude. In last video, I was given you some instruction to bring your notebook and pen with you while you are watching this video and sit properly. That also I was told you. I hope that you follow all my instruction. So if you are not taking your notebook right now, then please take your notebook and pen with you and write down the definition of longitude. The vertical imaginary lines drawn on a globe that run in the north-south direction are known as longitudes. So here we are, this is the longitude, this is the vertical line which I am speaking in the definition. Vertical means the straight line, that is called longitude. So here there is longitude given, this is latitude, the horizontal line, this one. Those who were not watch my video, first video of this chapter, for them this is a primary instruction to understand about latitude also. And you can see the video while you are writing chapter 5 part 2 chapter name and standard then. So the whole word is seen like this is a map. uh, all the latitude and longitude cut to each other at 90-degree angle. So there are 181 latitudes. So how many longitudes are there? So in the last video I was given you the facts about longitude. There are 360 longitudes. 0-degree longitude is known as the prime meridian. So latitudes are known as the lines of parallel, and they never intersect to each other, while longitudes intersect to each other at the pole, north pole and south pole. See here, all the lines meet. Show me the last slide that you better understand about that. See this slide you can see properly and understand. See, this longitudes meet to north pole and south pole. Latitudes not having any uh, difference between two latitudes. The margin is as it is, while in longitude between two meridians the size is decreased while it's reached to the pole. यानी जैसे ही वो पॉल के पास जाते हैं उनके बीच की साइज़ कम होती जाती है, जबकि पैरेलल्स में ऐसा नहीं होता, उनकी जो बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम टू सेम रहता है, इसलिए उसको पैरेलल्स बोला जाता है. और
पैरेलल्स में साइज कम होती है, जबकि लॉन्जिट्यूड में साइज डिक्रीज नहीं होगी, साइज सेम टू सेम रहेगी, पर उनके बीच का डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, वो डिस्टेंस नो पॉल के पास जाते जाते कम हो जाता है, पर उनकी जो ये लेंथ है वो लेंथ वैसी की वैसी ही रहती है, जबकि पैरेलल में लेंथ कम होती है और साइज में कोई चेंज नहीं होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट लॉन्जिट्यूड के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच, द 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। अब 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, तो 0 डिग्री लेटीट्यूड को हम क्या बोलते हैं वो आपको कमेंट में मुझे बोलना है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने ये वीडियो किस तरह से और कैसा देखा है। तो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच, द 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड दैट पासिस थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड इज नोन एज प्राइम मेरिडियन। तो ये ग्रीनविच एक प्लेस का नाम है, ये है 0 डिग्री। ये आप जब इंग्लैंड के लंदन में जाओगे तो वहाँ पे ये प्लेस है जहाँ पे आपको दिखने को ये मिलेगी। ये देखिए, ये एक भी फोटोग्राफ्स आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर यहाँ पे आपको वीडियो में ये बेनिफिट है कि आप ये प्लेसेस को देख सकते हैं। ये है ग्रीनविच और ये है 0 डिग्री यहाँ पे, ये देखिए। और ये है मैप के ऊपर कि ये है प्राइम मेरिडियन, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, आई होप। अगर कोई भी हो तो आप कमेंट में मुझे बोल सकते हैं कि सर जब आप एक्सप्लेन करते हो तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम इमीडिएटली। तो दिस इज़ द 0 डिग्री longitude which is known as the prime meridian which is passed from Greenwich। अब यहाँ से लेके 180 इस तरफ और 180 इस तरफ, टोटल मिला के 360 होते हैं, बराबर। तो लेटीट्यूड कितने थे 181 और लॉन्जिट्यूड कितने हैं 360, ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड के बारे में अगर कोई आपको पूछे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से है। तो एक तो ये इक्वेटर आ गया, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, और नीचे की साइड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल। तो ये इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड्स है। वैसे ही इम्पोर्टेंट लॉन्जिट्यूड के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पे दो आते हैं, एक है हमारा ये प्राइम मेरिडियन और दूसरा है हमारा 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड विच इज़ नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो लॉन्जिट्यूड है वो अर्थ को दो ग्रुप में डिवाइड करता है। कौन से दो ग्रुप में डिवाइड करता है? तो एक है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा है सदर्न हेमिस्फीयर। वाइल लेटीट्यूड अर्थ को दो ग्रुप में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सॉरी यहाँ पे मैंने एस लिख दिया, वेस्ट आता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ पे आता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरह से अर्थ के हमारे 4 पार्ट हो जाते हैं लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड की मदद से। It divides the earth into two vertical halves, eastern hemisphere and western hemisphere. It has longitudes extending up to 180 on both eastern and western sides. तो जो अभी मैंने आपको समझाया वो। Since it passes through Greenwich, it is generally referred to as the prime meridian as well. तो ग्रीनविच से ये पास होता है इसलिए इसको बोला जाता है प्राइम मेरिडियन भी, प्राइम मेरिडियन, बराबर। तो ये आपको प्लेस देखने को मिल गई। अब आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ बैठे बैठे भी ये ग्रीनविच देख सकते हो और आप सबको बता सकते हैं कि हाँ मैंने 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड देखा है। यहाँ पे अगर आप ये पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है ये वाली लाइन। अब ये लाइन के बीच में आप पैर रखोगे तो आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी हो और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी हो, ऐसा माना जा सकता है। यहाँ से 1 2 3 4 चालू होता है, ठीक है। तो ये है प्राइम मेरिडियन। अब इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे इम्पोर्टेंट लॉन्जिट्यूड के बारे में, तो ये है इंटरनेशनल डेट लाइन जो 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड बोला जाता है, 180 डिग्री। यहाँ पे मैं
इंक अलग कलर के ले लेता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 180 डिग्री, तो ये है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इंटरनेशनल डेट लाइन के कुछ फैक्ट है कि एक तो ये ओशन से पास होती है। क्यों ओशन से पास होती है? क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन के इस तरफ का डेट और टाइम अलग होगा और इस तरफ का डेट और टाइम अलग होगा। अब अगर लैंड के ऊपर से पास होती तो एक ही कंट्री में दो अलग अलग डेट और टाइम होते हैं, तो ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ जाता। दूसरा, ओशन से पास होने में उनको बीच में कोई लैंड आएगी नहीं। अगर लैंड आती है तो लाइन थोड़ी जिगजैग हो जाती है, इसलिए हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन कैसी है? जिगजैग है, जो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। ये देखिए, स्ट्रेट नहीं जा रही है। यहाँ पे भी आप देखिए, जहाँ पे भी बीच में आइलैंड आएगा वहाँ से वो बाईपास हो जाती है। और इस तरह से आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाली। तो ये जिगजैग है। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी एक फोटोग्राफ है, वहाँ पे आपको नोटबुक में वो ड्रॉ करना है। और अगर नहीं है तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर से ये वाला जो पिक्चर है वो आपके नोटबुक में आप ड्रॉ करके दिखाना कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है। तो देर इज़ ओनली 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड विच इज़ नॉन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। यानी 0 डिग्री से आप चालू करोगे तो 180 पे पहुँचोगे। 180 एक ही है। फिर 0 डिग्री से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 0 डिग्री से 1 2 3 4 चालू होकर 179 तक जाएगा, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 0 से 1 2 3 4 5 होके 180 तक जाएगा। और 0 और 180 को मिलाएंगे तो टोटल 360 हमारे पास लॉन्जिट्यूड रहेंगे। तो आपकी नोटबुक में यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, देयर इज ओनली 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड विच इज़ नॉन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। When one crosses this line, the day and date changes. जैसे ही आप ये साइड से इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे डेट और टाइम चेंज हो जाएगा ये डायरेक्शन में, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा। द इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू द पैसिफिक ओशन, एंड पैसिफिक ओशन से ये पास होती है, यह भी आपको नोटबुक में मेंशन करना है। इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस through the Pacific Ocean and separates two calendars date. It is not exactly 180 at all places since the line crisscrosses across several time zones. This is because if it is drawn straight, then the line has to pass through many islands, and due to this, they might have 2 days and 2 dates on the same island. This might create confusion. Therefore, the line when it passes over land is shifted toward water bodies, and so it is not straight but zigzag. तो अगर आइलैंड के ऊपर से पास होगी तो वहाँ पे एक ही आइलैंड पे दो अलग अलग डेट और डे होंगे, इसलिए ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये लाइन जो भी बीच में आइलैंड आएगा उसके पास वाली वाटर बॉडी से पास हो जाती है। अब टाइम कैसे डिसाइड होता है? तो यहाँ पे एक डायग्राम है कि एक लॉन्जिट्यूड से दूसरे लॉन्जिट्यूड तक जाने में सनरेज को 24 मिनट का टाइम लगता है, बराबर, सन के सामने आने में। तो वैसे 1 आवर में 15 लॉन्जिट्यूड पास होते हैं, और इस हिसाब से 24 आवर में 180 लॉन्जिट्यूड पास होते हैं, इसलिए इस तरह से टाइम को सेट किया गया है। तो द सन इज़ द बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द अर्थ. The time at any place is decided by the position of the sun in the sky and its longitude. तो टाइम कैसे डिसाइडेड होगा कि सन के सामने कौन सा लॉन्जिट्यूड आता है उसके हिसाब से। तो ये देखिए कि ये लॉन्जिट्यूड यहाँ पे आया, सन के सामने क्रॉस हो गया 11:59। अगर सन एग्जैक्टली हेड के ऊपर होगा तो वहाँ 12 o'clock होंगे, और आगे वाला जो आने वाला है वहाँ पे 12:01 होगा। तो इस तरह से ये काउंटिंग होता है, ये उसकी पूरी मेथड है कि द वर्ल्ड रोटेट्स स्पिन 360 डिग्री इन 24 आवर्स। 360 हमारे पास लॉन्जिट्यूड है, डिवाइडेड बाय 24 आवर तो 115 डिग्री पर आवर। द वर्ल्ड हैज़ 24 टाइम जोन्स, ईच टाइम जोन इज़ 15 डिग्री अपार्ट। अब उसको कैसे काउंट होता है वो भी यहाँ पे है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द डे एट ST एट 53 डिग्री 27 मिनट ईस्ट। तो 53 डिग्री डिवाइडेड बाई 15, तो आपको मिलेगा वहाँ का टाइम 3.53। सो जेड जोन। तो इस तरह से आप कौन से प्लेस कौन से जोन में है वो भी ढूंढ सकते हैं। The Earth completes one rotation in 24 hours. There are 360 longitudes in all, 180 to the east of the prime meridian and 180 to its west. In this way, 15 longitudes pass by the sun in 1 hour. One longitude takes 4 minutes to rotate. Thus, there is difference of 4 minutes between two adjacent longitude, यानी दो पास पास वाले longitude के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस रहेगा। Therefore, the time is different places on the earth varies as per their longitudes. तो इस तरह से अर्थ के ऊपर जितने भी प्लेसेस है वहाँ पे अलग अलग टाइम होता है। पर अब जैसे एक कंट्री में सेम टाइम क्यों होता है, जैसे इंडिया की बात करें तो गुजरात में जब 12 o'clock होते हैं तो कर्नाटका में भी 12 o'clock होते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश जो ईस्ट कोस्ट पे है वहाँ पे भी 12 o'clock होते हैं, जबकि कर्नाटक अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में तो काफ़ी डिफरेंस है, बहुत सारे लॉन्जिट्यूड आ जाते हैं। तो ये होता है लोकल टाइम की वजह से और स्टैंडर्ड टाइम की वजह से। तो वो क्या है वो हम देखते हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम पहले हम देखेंगे लोकल टाइम को। लोकल टाइम, तो ये लोकल टाइम का मेजरमेंट है। द टाइम टेक्स अकॉर्डिंग टू द ओवरहेड पोजीशन ऑफ द सन इन अ पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज द लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस। जब सन सर के ऊपर आएगा तो वहाँ पे फिक्स टाइम होता है जिसको लोकल टाइम बोला जाता है। इट डिफर्स बाई 4 मिनट विथ एवरी 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड। When any longitude faces the sun directly, it would be 12 noon in all the places of that longitude. तो जब एक लॉन्जिट्यूड सन के सामने आता है जहाँ पे सन सर के ऊपर हो तो वो लॉन्जिट्यूड में आने वाले हर एक प्लेस पे 12 नून का टाइम होता है। इन दिस वे द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू मिड नून। दोपहर के 12 बजे से देखा जाता है। द प्लेसेस लोकेटेड ऑन द सेम लॉन्जिट्यूड हैव द सेम टाइम एंड प्लेसेस लोकेटेड एट डिफरेंट लॉन्जिट्यूड इन द सेम कंट्री हैव डिफरेंट टाइम्स। तो जो सेम लॉन्जिट्यूड में प्लेसेस है, भले ही वो कंट्री में हो या अदर कंट्री में हो, पर 12 नून के हिसाब से देखने जाए तो वो वहाँ का लोकल टाइम होता है। और सेम कंट्री में अलग अलग प्लेसेस अलग अलग लॉन्जिट्यूड पे होते हैं तो वहाँ पे भी लोकल टाइम अलग अलग होता है। In a country, if the local time is different in different places, it can create problems in administration. अब एक ही कंट्री में लोकल टाइम अलग अलग होगा अलग अलग प्लेसेस पे, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे फिक्स किया है कि जब सन सर के ऊपर हो तो 12 बजे है आफ्टरनून के, ऐसा हमने फिक्स किया है। पर अब अरुणाचल प्रदेश में पहले 12 बजेंगे क्योंकि वहाँ वो ईस्टर्न साइड पे है, सनराइज पहले वहाँ आएगी, और गुजरात वेस्ट कोस्ट पे है। तो जब अरुणाचल प्रदेश में 6 o'clock होंगे तो अब गुजरात में 12 o'clock होंगे। अगर इस हिसाब से होगा तो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए हमने नई आइडिया जो यूज़ की है वो कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम क्या है वो हम देखते हैं। अभी ये आपको नोटबुक में मेंशन करना है कि the local time of a place which is situated in the middle of the country is taken as the standard time of the country। तो कंट्री के मिडल में से जो लॉन्जिट्यूड पास होगा और वहाँ पे जब 12 बजेंगे तो उसका मतलब है वो पूरी कंट्री के लिए कॉमन होगा। दिस मीन्स दैट टाइम इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर लॉन्जिट्यूड इन अ कंट्री विच इज़ नॉन एज स्टैंडर्ड टाइम। यानी कंट्री के बीच में से जो लॉन्जिट्यूड पास होता है और उसके टाइम को जो पूरी कंट्री में रिफर किया जाता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। The standard time of our country is decided on the basis of 82.5 degree east longitude which passes through Allahabad in उत्तर प्रदेश। तो ये है इलाहाबाद, ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम है क्योंकि ये कंट्री के सेंटर में से पास होता है। और यहाँ पे आपको ये ढूंढना है कि इतने रीजन में और कौन सी जगह आती है। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट, ये आपको नोटबुक में लिख देना है। दिस मीन्स दैट इफ
it is 12 noon in Allahabad, it is 12 noon everywhere in the country. This makes it convenient for the smooth administration of the country. अब जब यहाँ इलाहाबाद में 12 o'clock बजेंगे तो पूरी कंट्री में इसका मतलब है 12 o'clock बजे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लखनऊ के यूपी में इलाहाबाद के पास से ये पास होता है। अब यहाँ पे जब 12 o'clock बजेंगे तो पूरी कंट्री में 12 o'clock बजेंगे। अब इस हिसाब से पूरी अर्थ 24 टाइम जोन में डिवाइडेड है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा उसका मेज़र है। अब ऐसा पॉसिबल है कि एक कॉन्टिनेंट में अलग अलग टाइम जोन हो, पर एक कंट्री में अलग अलग टाइम जोन हो, वैसे चांसेस बहुत कम है, पर हो सकता है ऐसा भी। अब स्टैंडर्ड टाइम जोन, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ईच टाइम जोन? तो 1 आवर। एवरी 15 longitude is a new time zone. How many time zones are there? तो 24 in a one day there are 24 time zone. तो GMT 2 PM local time 12 noon. What is your longitude? तो 2 hour into 15 30 degree. 2 PM is later in the day than 12 noon. तो वो आ जाता है 30 डिग्री वेस्ट, क्योंकि 12 बजने के बाद वाला टाइम है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जब यहाँ पे ये जोन में ये जोन में बीच में से अगर यहाँ से आप देखें ये छोड़ के ये ईस्टर्न जोन में जब डे होगा तो वेस्टर्न जोन में वहाँ पे नाइट का टाइम चल रहा होगा। यानी जब हमारे इंडिया में मॉर्निंग होती है तो अमेरिका में नाइट होती है। क्यों? ये टाइम जोन की वजह से। अब इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, तो द टाइम ऑफ the standard meridian of a country, every country has its own particular standard time and it remains the same for the whole country. Places on the same longitude can often have varying standard time. तो एक longitude के ऊपर होने के बावजूद स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हर एक कंट्री में सेम टाइम रहेगा। तो ये डिफरेंस है स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम के बीच का, ये वाला। तो ये आपको नोटबुक के अंदर मेंशन कर देना है। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम। अब इसके बाद यहाँ पे थिंग्स टू नो आपकी टेक्स्ट बुक में है, वो आपको मेंशन करना है। और यहाँ पे एक्सरसाइज आएगी जो मैं अभी पिक्चर लेके अपलोड कर दूँगा, वो आपको कंप्लीट करनी है। अब इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है? और होमवर्क आपको टाइम पे कंप्लीट कर देना है। तो आपको क्या मेन काम करना है कि एक तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, और घर पे ही रहना है। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।